नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सर्विस नेक्सस पे। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना जा रहा हूँ, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा सफलता अर्जित की अपने करियर में। तो आपको मिलाने जा रहा हूँ शेफ शिवंजन रेड्डी, जूनियर शू शेफ है। सर आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है शिवंजन रेड्डी है। मैं गल्फ में काम किया, ओवरऑल गल्फ। आई बीन वर्किंग लाइक बिग 5 स्टार प्रॉपर्टीज, वेल नोन होटल्स, कैंपेन्स की होटल मस्कट में मैं काम किया था एज ए जूनियर शू शेफ। एंड आई हैव मेनी एक्सपीरियंस ओवरऑल माय करियर। आई बीन वर्किंग, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 9 years. आई बीन वर्किंग फॉर, आई स्टार्टेड माय करियर एज ए कॉमी in Bahrain, Movenpick Hotel. Then I got promoted to Comi 1. Then I moved to Park Hyatt Abu Dhabi. This what I started my career. Then I moved to Kempinski Hotel Muscat as a demi chef de partie. Then I got promoted there as a chef de partie. Then I got some pre-opening task opportunities. So I moved to Kuwait in Grand Hyatt. I think everyone know this place, Grand Hyatt Hotels. It's a very big chain. So I've been working there as a for not long time, just for a short time, like 1 year, as a chef de partie as well. Then I got opportunity for FIFA World Cup also. I've been working in Qatar. Then again I got opportunity to work in Kempinski Hotel Muscat as a junior chef. This was my career, how I got until this time. Wonderful experience and more than international experience you have. Yes. Lot. Or I have a lot of international experience. I've been working in the Hyderabad for a short period after my finishing my graduation. Then I work for Marriott Hotels and Taj Falaknuma Palace. वाह, अमेजिंग एक्सपीरियंस सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा सवाल ये है आपसे कि एक फ्रेशर्स को होटल इंडस्ट्री में आना है और स्पेसिफिकली प्रोडक्शन में जाना है, मतलब किचन में जाना है, तो क्या उनके दिमाग में होना चाहिए, क्या बेसिक चीज़ उनको सीखना ज़रूरी है ताकि वो जो फर्स्ट स्टेप्स है क्या है? This was very nice question, sir. For especially for the chefs. So first thing, the people when they start up their career, they need to have the hard work, honesty in the kitchen. Why? Because we are serving food very genuinely. So other people they are coming and eating to our restaurants. It means they're trusting us. So we need to give proper food. So first thing, what we are working for, we need to work for honestly and hygienically. So they can make food at home also. Why they are coming to our restaurant and they are having food? So that's the reason we need to be very honest and trusty. What we are making the work, we need to be very neat and hygienic way. हाइजीन एक चीज़ होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जो खाना बनाते हैं वो दिल से बनाना चाहिए, ठीक है? तो ये तो एक शेफ़ का, वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, डज़न्ट मैटर, शेफ़ बनने के बाद ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बट इसके साथ-साथ आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं स्किल के लिए और जो क्वालिटी है, मतलब हाइजीन वगैरह मेंटेन करने की? सी कि काम तो कोई बंदा करता है, आप घर में भी काम करते हैं, दूसरा भी काम करते हैं, बट किचन इज टोटली डिफरेंट. So this is not like innovation. We need to do, so every day we having the same food, we feel like bore. Okay, so that's what we're doing our food like innovatively. So making taste. If you're making some butter chicken, we are doing the presentation differently to make the eye appeal. So अब जो देख रहे हैं खाना सामने है तो लगना है कि अपन खा लेने हैं अभी. एब्सोल्युटली करेक्ट। So we make motivating to our junior staff to giving chance to create new dishes. So we are giving the chances like this to the junior chefs. सो अगर सपोज कोई बंदा है जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहता है और किचन में जाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होंगे, उनको बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है, किस चीज़ों पे नॉलेज गेन करना है? See, जो नया ली उसको कुकिंग पे फर्स्ट उसको पैशन रहना है. मेन थिंग इज दे नीड टू हैव द पैशन when they are making something at home. So they need to try some dishes, some to make, and not even the small dish. You're making even at least the chai. You need to make different way. So from there we can get the passion about the cooking. Absolutely. And we can, if you go for any market, you need to observe the new things, new ingredients. So this way they make the passionate about the cooking to newcomers. ओके। और मेरा सवाल अभी भी आपसे यही है कि
जैसे कि उनको मेन किचन में आना है तो बेसिक मतलब सॉस क्या होता है, सूप्स क्या होते हैं, ग्रेवीज क्या होता है, ठीक है, स्टॉक वाटर क्या होता है। आई थिंक ये बेसिक चीज़ है जिससे उनको सबसे पहले सीखना, जैसे कि अल्फ़ाबेट ABCD होता है तो प्रोडक्शन के लिए ये बहुत खास इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से। या डेफिनेटली प्रोडक्शन में मोस्टली किचन में भी थोड़ा बेसिक चीज़ रहते हैं, जो बेसिक क्यों बोलते हैं कि जो बेसिक लर्न करेगा तो अपन ABC 1 2 3 एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा करते हैं मैथ्स में, किचन में भी ऐसा सॉसेस बेसिक सॉसेस हो जाता है और वेजिटेबल कटिंग्स रहता है। और वी हैव इंडियन में जाएगा तो ग्रेवीज रहता है। सो ये क्या है कि सॉसेस स्टॉक्स इज लाइक फ्लेवर वाटर which will like extract from the like from the chicken. It's like giving the flavor to your more flavor to your dishes. सर एक एक चीज़ और है, सर ये स्टॉक वाटर जो है थोड़ा-सा इसके बारे में लेंथी बात बात करेंगे, इसके बारे में बताएँगे? Definitely कि स्टॉक वाटर है कि एक फ्लेवरिंग एजेंट्स टू द डिशेस। सो अभी क्या है अपन दाल में पानी डालते हैं टैप वाटर, सो इट्स लाइक इट्स ए plain taste. So if you're doing the stock, for example, we buying some vegetables, we peeling the carrots, okay, so it will be like wastage. So that's the reason what we do, even the carrot, onion, all this peel, whatever the wastage, you put in the water and boil for like 30 minutes. So then you add to that dal or some any curries, so it will give the flavor agent to your dish. गॉट इट। तो ये एक मतलब वेजिटेबल्स जो है साफ-सुथरा वेजिटेबल को उसको बॉयल करना है, मतलब जो पील करा हुआ है उसको वाटर में डालना है ताकि आपको जब भी वेजिटेरियन के लिए जो भी एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत है घर पे है तो हम लोग वाटर डाल देते हैं। अगर वही होटल इंडस्ट्री में है तो हम लोग जो स्टॉक वाटर है उसका यूज़ करते हैं और स्पेसिफिकली उसका वेज, नॉन-वेज अलग रहता है। आई थिंक वेज का अलग रहता है, फिश का अलग रहता है, मटन का अलग रहता है, चिकन का अलग रहता है। एम आई राइट? डेफिनेटली ये अलग-अलग चीज़ होता है क्योंकि अपन नॉन वेजिटेरियन गेस्ट रहते हैं उसके लिए अपन क्योंकि उसके लिए अपन नहीं डाल कर सकते हैं नॉन-वेज डाल के पानी स्टॉक। So we have the different stocks. We have vegetable stock, we have chicken stock, we have fish stock. So some guests are allergic to the dishes also. So that's the reason we have the different stocks. और एक माइंडसेट रहता है कि जो प्योर वेजिटेरियन है वो अगर होटल्स में जाते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर सब मिक्स है। ऐसा होता है क्या? जो आपने मेरे को पहले जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था आपने पहला क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि दिस वाज रन बाय द ट्रस्ट। So, so we not mixing up any things. We are doing with the trust. Guests are trusting on us. So the same trust we are serving the food. So we never ever do this kind of things. We make separate for everything. Vegetarian separate, and we have the racks also separate, and we have the fridge also separate for the storings. वेरी ट्रू सर, आई रियली प्राउड ऑफ दिस बिकॉज़ लोगों को ये लगता है कि ये शायद मिक्स है, तो आई एम श्योर आप लोगों का भी ये डाउट थोड़ा क्लियर हो गया कि वेज वाला हमेशा वेजिटेरियन डिशेस रहते हैं और नॉन-वेज हमेशा नॉन-वेज जो वेसल्स वगैरह अलग रहते हैं। तो यहाँ कहीं मिक्स अप नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब गेस्ट एज़ अ गॉड जैसा ट्रीट करते हैं, तो हमेशा वही तरीके से हम खाना बनाते हैं, उसी साफ-सुथरा से हम खाना बनाते हैं, ताकि गेस्ट को तकलीफ़ ना हो। होटल इंडस्ट्री में जैसे कि हमने बात किया है कि हाइजीन इम्पोर्टेंट है, हाइजीन के अलावा ग्रूमिंग का कितना इम्पोर्टेंट है सर? So definitely grooming is play very important role in the kitchen. See why? Because if you have the longest, so maybe it's the food can contaminate. So because why it's contaminated? Because we have the lot of contamination bacteria in our hair, even in the nails, okay, and even on our the dresses. सो मुझे ये चीज़ क्लियर करना है कि एज अ शेफ या कोई भी किचन में या कोई भी होटल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड 100% होना ज़रूरी है। ट्रिम हेयर, Trim hair. ट्रिम हेयर, शेविंग तो अभी शेफ रख सकते हैं, बट यूनिफॉर्म साफ सुथरा होना चाहिए। यूनिफॉर्म ज़्यादा मतलब कुछ लोग स्मेल आता है वो नहीं होना चाहिए। लाइट परफ्यूम ठीक है। और जो भी शूज़ वगैरह स्पेशली किचन में शूज़ जो है ना स्लिपरी नहीं होना चाहिए और सॉक्स वगैरह कंफर्ट होना चाहिए और जो यूनिफॉर्म पहना है एकदम कंफर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइट फिटिंग, ठीक है। और इसके अलावा सर मुझे और एक चीज़ ये भी पूछना है कि थोड़ा-सा एक मतलब कॉमन चीज़ है कि कुछ लोग स्मोक करते हैं या कुछ लोगों का वो जो हाइजीन पार्ट है जैसे कि वॉशरूम में जाते हैं या स्मोक करते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए ना?
सी सर, जनरली होते हैं होटल इंडस्ट्री में, और अपन भी फॉलो अप करना है, घर पे भी अपन भी करना है फॉलो चीज़। डेफिनेटली क्या है कि हम लोग जो शेफ्स जो जिसको स्मोकिंग का हैबिट है, वो लोग शेफ कोट निकालते हैं लॉकर रूम में, और जो स्मोकिंग जोन सेपरेट रहते हैं उन लोगों के लिए जाएगा और स्मोक करेगा। और डेफिनेटली जो स्मोकिंग स्टेशन जिधर भी रहेगा, वो एक वॉशिंग बीन रहता है होटल इंडस्ट्री में, एंड सैनिटाइजर भी रहेगा। वो डेफिनेटली कंपलसरी वो स्मोक करने के बाद डेफिनेटली वो हैंड वॉश करके सैनिटाइज जरूर करना है वो लोग। और कि होटल में आएगा भी, कभी किचन में एंटर होएगा भी, कंपलसरी दे नीड टू सैनिटाइज, एंड एवरी 30 minutes, every 1 hour, we'll get the alarm to sanitize and to wash our hands in the hotel industry. And as well we are, if you're going to touch any food, okay, we are wearing the hand gloves. आई थिंक विद द हैंड ग्लव्स वी आर नॉट सपोज टू टच नेक्ड हैंड। हमको जो भी स्पून्स वगैरह है यूज़ करना ज़रूरी है, राइट? Yeah, spoons, we use the spoons by the same way we need to put the hand gloves as well. ओके, ओके। एंड सर अभी जैसे कि अभी इंटरनेशनल आपका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल, तो मैं कुछ और मेरे पास क्वेरीज़ है, जैसे कि इंडिया और इंटरनेशनल में जो हाइजीन का लेवल है या तो फिर वर्क एटमॉस्फेयर है, कितना डिफरेंस है? और वहाँ का जो कलीग्स के साथ उनका जो टीममेट्स है उनके साथ उनका बिहेवियर कैसे रहता है? कितना इम्पोर्टेंस देते हैं वो लोग अपने स्टाफ को? इसके बारे में थोड़ा बताइए। So hotel industry means it's a professional industry. It's an professionalism. So we everyone in hotel industry, there is a, they are giving the respect, and this is the way the hotel industry is. So they are giving the respect to the senior, they are giving respect to elders. The same way they are also, it's like गिव एंड टेक। give and take respect. Okay, and this was happened here. And compared to international, what happened? International also it's same like this. It's not like, so in hotel industry in internationally, they have the training sessions to the staff. इट्स अ मैटर अ लॉट। Yeah, so why? Because in India, so somewhat I feel like it's missing some training sessions from the hotel industry. So we need to train the people every week or every 1 month from the HR. We need to guide them. This is the thing happened. So compared to in internationally, if they follow the rules and regulation, the policy of the hotels also different compared to India and international. So we get the more training sessions regarding this. सो सर ने जैसे बताया कि यू हैव टू वेरी सिंसियर वट एवर यू डू डू इट फ्रॉम हियर। एंड सेकेंड थिंग, दूसरी बात जो है कि किचन का जो कॉस्टिंग होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जब आप ट्रेन करके आप अपने एम्प्लॉय से काम करवाते हो तो वहाँ पर जो कॉस्टिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप जब ट्रेन करते हो तो एक होता है कि एक चिकन में 4 किलो 5 किलो जो भी बिरयानी बनता है अप्रॉक्सीमेट, तो सबको पता है कि यहाँ 1 किलो चिकन में 5 किलो बिरयानी बनता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, या 1 किलो चिकन में 4 पोर्शन या 5 पोर्शन जो भी चिकन डिश ड्राई या ग्रेवी का एक लिमिट होता है, वो उतना ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आप सही तरीके से जा रहे हो। अगर कम होता है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हो। वेस्टेज ज़्यादा मतलब आपका जितना भी बिजनेस अच्छा क्यों ना हो, ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस पे नज़र कौन रखते हैं सर? See, in every hotel industry, there will be a cost controller. So the cost controller will come and he will check the kitchens, and as well the same responsibility have by the executive chef, and as well the chefs in charge in the kitchen. So mostly cost controller ऐसा होता है कि cost controller रहता है every होटल में एक separate department है. So ये क्या, it's under the finance department. So why? Because what we are, when we are hiring by the owner us, we need to give some profits to our organizations as well. So it's include the one of the reason also, no wastage. So every week we do the costing. So what it's like follows like purchase, stock, and how much we have storing and how much we are using. So for example, we per a week we need only 100 kgs of rice for operation. What if when we buy 200 kgs, it's like useless. Why? Because maybe we don't know after 1 week the price will go down. So we buy, so this cost will be ये increase. बहुत ही लॉजिक है इस पॉइंट में। So
That's what we see the market prices and how much we need. So as per that, we purchase our items. सो थोड़ा बहुत ऊपर चलता है, बट टू मच ऊपर मतलब 1:1 इज नॉट गुड फॉर द Yeah, मीन्स good for the industry. We इंडस्ट्री. will get in the losses. The restaurant. सर वन मोर थिंग, यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना है, जब आप नया नया ज्वाइन होते हो, आप जब देखते हो F&B मैनेजर होता है, तो वो देख के F&B मैनेजर देख के डरते हैं, F&B मैनेजर को देख के डरते हैं, या जो शू शेफ होता है, जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, उनको देख के डरते हैं. तो ये डरना मतलब कहाँ तक लॉजिक है? क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह में काम किया, लेकिन मैं कभी डरा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ उनसे हम कुछ सीख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको रिस्पेक्ट देना है, और इसके अलावा हमें जो भी चाहिए उनको अच्छे तरह से पूछ सकते हैं, बट बिजी टाइम में नहीं. जब वो फ्री हैं उनके पास एक नोटबुक लेके जाओ, और उनके पास जो भी डाउट्स है आप पूछो, और वो आपको बताएंगे. तो ये कहाँ तक सही है सर? सर ये डरने के बाद जो है जो स्टार्टिंग फिर होता है सभी को. तो व्हेन माय आई आल्सो जॉइन द इंडस्ट्री इट्स हैपेंड टू मी आल्सो ऑनेस्टली. सो क्या होता है, तो अपना एक्सपीरियंस होता होता है, आपको क्या होता जाता है, हॉनेस्ट रहेगा और कॉन्फिडेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हैं कि एग्जीक्यूटिव शेफ से और शू शेफ से और मैनेजर से और गेस्ट से. आप जब गेस्ट से बात करें, इंटरेक्शन करते हैं ना, तो आपको लगता है कि डर फियर विल बी गो, फियर जाएगा. So this what need to communicate. Mostly important is the communication. Even what you're doing, you need to communicate with your seniors. When you have want, you need to take the feedbacks from the guest. So what happened? These things will make you fearless. सो एक एटीट्यूड होना चाहिए, टू लर्न मोर एज मच पॉसिबल. Definitely. सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो. सो अभी आप ये बताओ कि आप तो अभी इंटरनेशनल छोड़ के इधर आ गए, ठीक है. एक्चुअली बहुत से लोग तड़पते हैं अब्रॉड जाने के लिए. देन ऑब्वियसली आप जब वहाँ से इधर आ गए, तो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, और आपको एक गट फीलिंग है कि आई कैन डू इट एनीवेयर एनीथिंग, बट आई कैन गेट बेटर पैकेज देन व्हाट आई यूज टू. तो पहले जो अर्न करते थे उससे बेटर पैकेज अर्न करने की सोच होगी आपकी. तो अभी क्या प्लान है कि मतलब कैसा सेटल होने का क्या है आपका? See, this was an a life. So everyone have the different plans, different things in the life. So it's not like that. If I'm leaving the international opportunity, so I'm came back to my home country. It's like that. I'm nothing. So we'll get the opportunities. So it's for me. It's like So I work for 9 years in internationally. I want to not put that skills to hold in my home. So I want to show, and I want to make learn to other people also. I want to teach to the people, so at least they can get the knowledge what we are sharing to the people, so they will get the best opportunities in the future. So that's the reason I came back to again to the teaching field industries. सो गाइस, जो भी आप होटल इंडस्ट्री में, स्पेशली प्रोडक्शन में, किचन में आना चाहते हो, ऐसे लोगों के साथ काम करने में बहुत मज़ा है, क्योंकि यहाँ से आपको मिलते ही जाएगा कुछ ना कुछ. आप जो चाहो मिलते जाएगा. तो ऐसा एक गाइडर जो गाइड करे, वेल विशर, हमें ज़िंदगी में मिल गया तो बहुत सही हो जाएगा हमारी ज़िंदगी. क्योंकि आजकल लोग इतने फेड अप हैं कि उनको क्या कर, इवन होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्या करना है आगे. ठीक है. सो ही इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस. एंड मुझे लगता है कि कहीं कोई आपके दिमाग में है कि आगे क्या करना है, या डाउट है, आप हमें मतलब डीएम कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी डाउट्स है सर के थ्रू हम क्लियर कर देंगे. ठीक है. बट एक चीज़ की तो मैं तारीफ करता हूँ सर का, क्योंकि सर ने इंटरनेशनल छोड़ के इंडिया आ गए, और स्टिल इज अ स्ट्रांग. एंड आई फील वो कुछ भी करने को तैयार है, और उनका कुछ प्लान्स होगा, वो आगे जाएंगे. और एक चीज़ कहना चाहूँगा, सर का हाथ का खाना मैंने खाया है, इज़ द बेस्ट सुपर्ब. क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा भी खाना बनाना आता है तो लोग सोचते हैं मुझे बहुत आता है. ठीक है. वो जो ईगो और एटीट्यूड इनमें नहीं है. आपको लगता है इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके इंडिया में आ गए, उनका जो स्वभाव है एकदम डाउन टू अर्थ है, एज अ स्टूडेंट जैसा है. और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का साथ मिलना ज़रूरी है. कोई भी आपको डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं. और सर मेरा और एक सवाल था
कि आपने जो अपने करियर में, मुझे पता नहीं, आपने अपना जो करियर में स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट करने के बाद आज जिस पोजीशन में, आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा? No one will think uh, like this. See, it's a life. Life is like move on. Okay. बट So हैव यू थॉट अबाउट दैट कि मैं मुझे एक 5 साल बाद एक शू शेफ बनना है, ऐसा कभी सोचा था? see, sous chef, it's our dreams. So we feel like I want to become like a executive chef also. So maybe still this is not end of our life. Yes. Still we have more time. Okay. So we don't know in the future we can become the executive chef also. So it's like this. सो कहने का मतलब ये है कि गोल बनाओ, शॉर्ट गोल, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है तो शॉर्ट टर्म गोल्स को क्रॉस करना है। और सर ने जैसे किया, सर का भी एक लंबा गोल है, आई एम डैम श्योर कि वो भी उनका फुलफिल हो जाएगा। और मुझे और भी आपसे कुछ जानना था, जैसे कि आपने बताया कि आप जब स्टार्ट करते हो तो बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है। सर, जो बेसिक चीज़ों पे फ़ोकस करना है, उस चीज़ को हम लोग आगे कैसे लेके मतलब आगे बढ़ सकते हैं? जैसे कि हमें प्रोडक्शन में हम आ गए, प्रोडक्शन में जो ब बेसिक जैसे स्टॉक वाटर क्या होता है, सॉसेस क्या होता है या ग्रेवीज़ क्या होता है। इसके अलावा हमको ये डिसाइड करना ज़रूरी नहीं है कि हमें कौन-से डिपार्टमेंट में आ जाए, इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टी, इटालियन, तो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें? So a nice question to me. So when I started my career, so I don't know, I know only the basic things, not even like 100% also the basic things. So when I go to industry, I start learning by seeing my senior chefs. Okay, then I learned something from the experience. So I don't know even cutting off proper vegetables. When I started in the industry, then everyone has, you know, I start learning. I put today I want to learn these things. Tomorrow I need to make salads. Okay, tomorrow I need to make the dressings. If for example if I am making the salad, what the salad items we need. Okay, but we cannot learn all in one day. Okay, Yes. first we need to learn perfect. If you want to learn 100% perfect, first you need to know 100% cutting the vegetable style. Then you need to go for how to make salad. Then you need to learn how to make the dressing. So this like these things, it's make me more motivated to learn new things. So then I started. I not focus only on one thing. When I know the 100% how to make the salad, then I say with the same work I focus on other things. So when I'm going, I'm helping to other chefs to learn. So then I go for Indian kitchen. Just I'm going for 1 hour. I take my time. Then I learn for the Indian gravies. So I know the salads now. Then I need to focus on other dishes. So by this way, I keep learning in multi skill. So, people say seasoning, मतलब seasons. Everybody knows. Now, what is seasoning? This seasoning is very simple way. Seasoning is like salt, pepper. We call in internationally. Here, what we do marinations like chili powder, turmeric, salt. This we call the seasoning ingredients. एंड आप सबको पता है, आपके घर पे दाल बनता है, दाल को तड़का मारते हैं। आप कितने लोगों को पता है कि जो तड़का मारते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं टेम्परिंग। जी हाँ, टेम्परिंग। सर, इज़ इट ट्रू? Yes, exactly 100%. तो मैंने भी ना बहुत सारे मतलब तैयार किए हैं सवाल सर के लिए। ये आपके लिए बेटर होगा जानने के लिए। लेकिन हाँ, अ, आपको इन सब को जानना है ना, आपको यूट्यूब अपना जो चैनल है उससे लगातार रहना है संपर्क में, ताकि आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत से लोगों का ये क्वेरीज आता है कि सर, मुझे और सीखना है, इस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना है। तो मैंने सर को पकड़ के लेके आया और ये अभी अभी आए अब्रॉड से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना सर को लेके कुछ वीडियोस बनाते हैं, ताकि जो भी प्रोडक्शन में है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। सर, मुझे एक और चीज़ कहना है। तो बहुत लोग बोलते हैं सर, आप किचन में कौन से डिपार्ट में हो? सीडीपी ओके, ठीक है, शू शेफ ओके। ये कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3 क्या होता है सर? See, Commie 1, Commie 2, it's like our positions. When you go, for examples, like associate, what we call for other industries like associate. Then you call team leader. Then you call the supervisor. Then you call the assistant manager. Then they call the manager. How you have the positions in other industries,
by the same way we have the in hotel industry also some positions. So we start from the like apprentice is like training. Yes. Training. Commie 1, it's a like next after apprentice we go for the Commie 3. Yes. Commie 3. Yes. Okay, it's the Commie 3, it's like associate, Like a fresher. fresher, very fresher. And Commie 2, it's like the is Next the level. next level of the he got the working for like 1 year, he got the experience, he promoted as a committee. Then we have the Commie 1, So he's a right hand for the chef. right? And for the chefs, then it's an demi chef. Demi chef, it's like the supervisor, it's assistant supervisor. Then chef de partie is like supervisor. CDP. Then we have the CDP. Then in the CDP we have the tasks like the managing the in charge for the kitchen, one outlet. Okay. Then we have the assistant manager. Assistant manager, it's like outlet assistant manager. Then we have the manager, it's like sous chef. So we have the many positions. So these are the hierarchy for one simple department, we can say. Yeah, it's an hierarchy So for one one department. department, yeah. So there are plenty. If we have more departments, so it will be a more chefs, and above all, there's a executive chef, right? Yeah, it's all to manage. If, for example, you have the directors. So in the directors, we call the executive chef as a director. So executive chef is a total in charge for the one total kitchen department. It's like in hotel we have like 15 restaurants. He will be in charge for the 15 restaurant, the executive chef. Then it comes after executive sous chef. After executive chef will come the chef de cuisine. After chef de cuisine, it comes like sous chef, junior sous chef de party, demi chef de party, and NLC commis. सो कॉमी का जो मतलब हो गया असिस्टेंट, हेल्पर, ठीक है। कॉमी फ्रेंच वर्ड है, COMMI, कॉमी, ठीक है। सर ने बहुत सारे अपने आइडियाज़ शेयर किए, नॉलेज शेयर किए। सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इंडिया में जो शेफ़ होते हैं, अपना टेबल्स जो मेज़ा है, क्लोजिंग के टाइम वो शायद खुद नहीं करते, उनके नीचे जो भी कॉमिक्स वगैरह उनको दे देते हैं। सेम अब्रॉड का क्या सिनेरियो है सर? So it's totally different comes to this scenario, comes to India and internationally. So I think better to follow all the chefs international standards. It's not like everyone is working here. So it's like, as I feel personally that it's not good. What we are working, we need to clean. Okay. There is we call clean as you go. Okay, clean as you go. We have the formula. Whoever work, they need to work and the clean and then start the work. So even internationally, we follow the same policy, clean as you go work. So we are not giving any to junior chefs to clean what we are work. The senior chefs are working. We are not giving the to clean the junior chefs. We are the one cleaning. If we are working, we are the clean. We are cleaning the departments or else the What? working stations. Yeah, the मेज़ा टेबल। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को पता है कि अगर किचन में कॉकरोचेस वगैरह जो भी अगर आते हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है पता है? क्योंकि जब अपना जो डिपार्टमेंट का हेड रहता है, जो भी शेफ रहते हैं, वो लोग शायद अपना टेबल प्रॉपर नहीं करते हैं क्लीन, और वो लोग अपने जूनियर्स को बोलते हैं क्लीन करने के लिए। जब तक मैं एज अ शेफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, तो वो टेबल प्रॉपर साफ़ हुआ कि नहीं पता नहीं चलेगा। अगर साफ़ नहीं हुआ, अपने जो भी हेल्पर वो साफ़ करते हैं, तो वो प्रॉपर वे में नहीं करते। इसकी वजह से वहाँ पर जो भी छोटे-छोटे रोटीज़ वगैरह, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी रहता है, तो इसके वजह से कॉकरोचेस बढ़ जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है ना, प्लस जो टेबल्स वगैरह है, शेफ़ खुद कर लेना ज़रूरी है, या शेफ़ के ऑब्ज़र्वेशन में वहाँ पर जो उनका हेल्पर है वो करना ज़रूरी है। करने के बाद शेफ़ को वो देखना ज़रूरी है, ठीक है? तो ताकि कल परसों को ये एक पार्ट ऑफ हाइजीन है, ठीक है? आप जितना नीट एंड क्लीन रखोगे अपना एरिया को, उतना आपका नाम आगे जाएगा। तो ये मेरा मानना है, तो यही मुझे सर से पूछना था। थैंक यू सर इसके लिए। और सर और एक सवाल इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों को एलर्जी होता है, ठीक है? स्पेसिफिक बोलते हैं कि उनको पनीर नहीं चाहिए या कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल नहीं चाहिए, तो उसको कैसा आप केयर कैसे करते हैं उनको? सर जो एलर्जिक गेस्ट बहुत सारा आता है होटल इंडस्ट्री में एलर्जी।
So if they are severe allergic to some dishes, the order taker in the kitchen, in the order taker, they are interacting with the guest, and if they don't understand regarding that, they are taking the help of the chefs, and they are communicating with the guest and regarding the allergic food. So like some people, some guests are like they don't want to have allergy dishes, so allergic for the dairy products, so they don't want to eat vegan dishes. Some they are gluten free guests. So in mostly in the US community, they don't eat gluten food. Why? Because they have the allergic to the gluten. As per that, we are preparing the food. सो इट्स पॉसिबल अगर किसी को एलर्जी है स्पेसिफिकली कोई भी कैप्टन जो ऑर्डर टेकर है ऑर्डर लेता है और आपके शेफ को आके बताता है सर इनका यही है तो कितना इम्पोर्टेंट होता है उनका खाना बनाने का जो टेकन केयर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है और उसका क्या रिजल्ट होता है सर It's highly recommend. We feel like guest is a god to us, and guest is giving business to us. So that's the reason what they order, we need to make sure we need to keep happy to the guest. That what motto for our hotel industry. Okay, so definitely it's possible to make the dishes if they are the allergic to something. So definitely, if take time, we inform to the guest. It take 30 minutes. So please give us time so we can prepare. If there is available, we can make immediately. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि जो भी प्रोडक्शन में है आप सबको बहुत अच्छा लगा आज का ये मीटिंग विद शेफ शिवंजन रेड्डी सर और सर बोलना अच्छा नहीं लगता पर मुझे अच्छा लगता है सर बोलना क्योंकि इनका जो वे ऑफ कुकिंग है जो इनका जो स्तर है मतलब इज़ वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना और नसीब मेरा बहुत अच्छा है कि मैं जब भी मिलता हूँ ऐसे लोगों से ही मिलता हूँ और मुझे अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच सर Tarkesh sir. So definitely we'll meet very soon again with new knowledge, with new products. थैंक यू गाइस Thank you.